مجھے اپنا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش تھی اور میرے جیسے کئی ساتھی میرے ارد گرد اکٹھے بھی ہو گئے تھے۔ ہم دوسروں کی محنت پر گزارا کرتے تھے اور ہم محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے، ہمیں ہماری ضروریات کے لیے دیتے رہتے تھے۔ ریس، سٹہ، فلیش، ہر طرح کی شرطیں ہمارا ذریعہ آمدنی تھی اور ہم انہی میں کمال حاصل کرنے کے لیے کوشاں بھی تھے۔ اس کے لیے طرح طرح کے جتن بھی کرتے تھے۔ رفیق کہتا کچھ ہونا چاہیے استاد، کوئی لمبا ہاتھ لگ جائے تو پوبارہ ہو جائیں، تو مزے ہی ہو جائیں ہمارے۔ لمبا ہاتھ کہاں ہے، کوشش تو کرنی چاہیے، مشکل ہے، بہروپیے ہزاروں، کام کا کوئی نہیں ملتا۔ یار کوئی چلہ وغیرہ کیا جائے جسے سٹے اور گھوڑے کا نمبر معلوم ہو جایا کرے۔ آسان نہیں ہے، عمل بھی الٹا ہو جاتا ہے اور پھر ایسا الٹا کرتا ہے کہ کبھی سیدھے نہیں ہو پاتے۔ میں ایک دن کسائی کی دکان سے گوشت خرید رہا تھا۔ دست کا گوشت تھا۔ کسائی نے بڑی ہڈی سے گوشت صاف کیا اور پھر ہڈی کو بگدہ مار کر توڑا اور ایک طرف ڈال دیا۔ یہ عمل میں نے بیشتر کسائیوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن پوچھے بغیر رہ نہ سکا، شیخ جی ایک بات تو بتائیے، آپ لوگ آخر اس ہڈی کو توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں، جبکہ دوسری ہڈیوں کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے؟ میاں جی، باپ داتا کی روایت ہوئے ہے، یہ ثابت ہڈی سفلی عمل کرنے والوں کے کام آوے ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اسے ہمیشہ توڑ کر پھینکنا چاہیے۔ اس سے سفلی عمل ہوتا ہے کیا؟ یہی سنا ہے جی۔ سفلی عمل کیسے ہوتا ہے اور یہ ہڈی کہاں استعمال ہوتی ہے، اس بارے میں تو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن ذہن بھٹک گیا۔ دوستوں سے تذکرہ کیا تو انہیں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ایک جاننے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی اور ان سے یہی سوال کیا تو وہ بولے، ہاں میاں، گندے علم تو ہوتے ہیں، ایمان کھونے میں کتنی دیر لگے ہے، مگر مسلمان بچے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے تمہارے لیے۔ سنا اور کان سے اڑا دیا۔ کسی سفلی عمل والے کی تلاش شروع کر دی۔ میرا شہر بڑا خوبصورت تھا، زندگی سے بھرپور، چھوٹی چھوٹی عمارتوں، بازاروں اور صنعتوں سے سجا ہوا۔ مشرق میں لہلہاتے کھیت حد نگاہ تک چلے گئے تھے۔ مغرب میں نگاہ کی حد سے خوبصورت پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ریس کورس کا میدان اسی سمت تھا اور اسی طرف سے پیر پھاگن کے مزار کا راستہ بھی تھا۔ ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کا مشاہدہ میرا دلچسپ مشغلہ تھا اور اکثر عام دنوں میں بھی میں اسی طرف نکل آتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دیر تک استبل میں بندھے ہوئے گھوڑوں کی ناز برداری دیکھتا رہا، پھر یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوا ٹیلوں کی طرف نکل گیا۔ خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دور دور تک کسی زیرو کا وجود بھی نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر آواز پیدا کر رہے تھے۔ کافی دور نکل آیا، پھر ایک طرف نظر اٹھی اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ انسان ہی تھا، بہت چھوٹے قد کا مالک، سوکھا بدن، آنکھیں پراسرار، اوپری بدن برہنہ۔ آنکھیں بند کیے ایک نکیلے پتھر پر ایک پاؤں سے کھڑا ہو گیا تھا۔ دور سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلچسپی پیدا ہو گئی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا، مگر وہ شکل تھی، مکروہ شکل تھی، بندر کی طرح ابھری ہوئی پیشانی، سانولا رنگ۔ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اپنا اٹھا ہوا پاؤں نیچے رکھ لیا۔ اطراف میں ایک عجیب سی چراند پھیلی ہوئی تھی جو بدبودار تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجیب سی شیطانی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بھی شیطانیت لیے ہوئے تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بدن میں کچھ جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک شدید سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ کاہے رے چھورا، کاہے ٹکر ٹکر دیکھے ہے، اس کی باریک سی آواز ابھری جو اس کی شخصیت سے ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے سنبھل کر کہا تو اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ جو کوئی بھی ہیں تیرے کام کے، اس نے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ سادھو ہو؟ میں نے اس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تجھے کا لگ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا اور میرے ذہن میں بجلی سی چمک گئی۔ ہو سکتا ہے یہ سادھو میرے کام آ جائے۔ ذہن میں وہ تمام گندے خیالات جاگ اٹھے تھے جن کے تصور میں دن رات میں سرگرداں رہتا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہاری ہی تلاش،
वो अपनी जगह से हटा और कुछ फासले पर पड़े हुए दो पत्थरों के दरमियान पहुंच गया। एक पत्थर की तरफ इशारा करके उसने कहा, बैठ जा, और मैं खामोशी से बैठ गया। तू का हमारी तलाश थी तो हम भी तेरे लिए ही यहाँ आए हैं। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। वो खामोश होकर मुस्कुराने लगा, फिर बोला, तुझे हमारी तलाश काहे थी भाई? कोई बात तो होवेगी ना तेरे दिल में। तुम साधु हो, मुझे सट्टे वगैरह का नंबर बता सकते हो? ये बता सकते हो कि अब की रेस में कौन कौन से घोड़े अव्वल आएंगे? वो इस तरह हंस पड़ा जैसे उसे मुझसे ऐसे ही किसी सवाल की तवक्को थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो फिर बोला, अगर हम तुझे एक घोड़े और एक सट्टे का नंबर बता दें तो तेरा का भला होवे? अरे काम करो सो पक्का, अगर तुझे ज़िंदगी भर घोड़े और सट्टे का नंबर मालूम होता रहे तो का बुराई होवे रे। पर बेटवा, काम को करने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। मेरे दिल में दिलचस्पी और तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने उसे कहा, मुझे क्या मेहनत करनी पड़ेगी? एक इल्म होवे है जिसे अगर तू सीख ले तो तू ही समझ के दौलत तेरे कदमों में ढेर लगी होगी। मेरा दिल धाड़ धाड़ करने लगा। ये तसव्वुर तो न जाने कब से मेरे सीने में पल रहा था कि ऐसी कोई कुव्वत मुझे मिल जाए जिससे मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाऊं। मैंने किसी कदर आजिज़ी से कहा, अगर तुम मेरा ये काम कर दो साधु बाबा तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे कदमों में रहूँगा। अपना काम तुझे खुद ही करना होवेगा बिटवा, बस ई समझ लो कि हम तेरी मदद करेंगे। तो बस यूं समझ लो कि आज से मैं तुम्हारा चेला। मैंने भी उसी अंदाज में कहा। वो फिर उसी अंदाज में हंसने लगा, फिर बोला, मगर एक बात पक्की करनी होगी तुझे, जो हम कहेंगे वही करेगा, नहीं तो तेरा नुकसान हो जाएगा। तो फिर ठीक है, अभी हम कितने दिन यहाँ रहेंगे और किसी और को हमारे बारे में मत बताना, वरना हमें पता चल जाएगा और फिर हम तुझे यहाँ भी ना मिलेंगे। नहीं बताऊँगा। तो फिर सुन, एक हड्डी लानी होगी तुझे अमल के लिए। वो हड्डी जानवर के बाजू में हुए है, साबित लानी पड़ेगी, कहीं से टूटी हुई ना हो। मुझे एकदम शेख जी की बात याद आ गई और उस वक्त इस बात की तस्दीक हो गई थी। मैंने कहा, क्या तुम सफली अमल करोगे साधु बाबा? अब तो हमारे कान मत खा, जो कुछ हम करेंगे वो तेरी आंखों के सामने ही होगा। पर एक बात फिर कहेंगे तुझसे, बात करियो तो सो पक्की, हम कच्ची बात करने वाले को छोड़ते नहीं हैं। मैं भी पक्की ही बात करता हूँ साधु बाबा। नाम क्या है तुम्हारा? बस रे, जो नाम तूने रख लिया वही है। ये हड्डी तो कब लाएगा? कल ही। तो ठीक है, कल इधर आ जाइयो, हम इंतज़ार करेंगे। बस अब जा। मैं खामोशी से पत्थर से उठ गया और गर्दन झुकाकर वापस चल पड़ा। दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। पाँव लरज रहे थे। एक तरफ हल्का सा खौफ भी दिल में था और दूसरी तरफ बेपनाह मुसर्रत का एहसास भी। वाकई अगर कोई मुझे ऐसी मुस्तकिल कुव्वत हासिल हो जाए तो फिर दुनिया देखेगी कि मैं क्या बन गया हूँ। खसूसी तौर पर इस बात को दिल में छुपाए रखा और इस बात के मंसूबे बनाता रहा, हड्डी के हसूल के लिए करना क्या चाहिए। और एक ही तरकीब समझ में आई। चुनाचे दूसरे दिन गोश्त मार्केट गया और अच्छी खासी महंगी कीमत पर जानवर का पूरा दस्त हासिल कर लिया, क्योंकि कसाई हड्डी तोड़े बगैर ना देता था और ये बात आम हो जाती। इसके बाद उसे कागज़ में लपेटकर कंधे पर रखे हुए मैं अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। एक जगह टीले के करीब बैठ गया और पहले ही साथ लाई हुई तेज़ धार छुरी की मदद से उस हड्डी से गोश्त साफ करने लगा। ये काम मुश्किल तरीन था और इसे करते हुए तबीयत झप हो गई थी, लेकिन लगन काम करवा रही थी। बड़ी मुश्किल से वो सही सालिम हड्डी निकालने में कामयाब हुआ। ऊपर चीलें मंडला रही थीं और गोश्त पर झपट्टा मारने के लिए नीची परवास कर रही थी। कई बार उन्हें भी उड़ाना पड़ा। जब साफ सुथरी हड्डी निकल आई और मैं थक कर पसीना पसीना हो गया तो अपनी जगह से उठा और तेज़ी से वहाँ से चला गया। मेरे हटते ही चीलों के गोल गोश्त पर झपट्टे मारने लगे। मैं बर्क रफ्तारी से उसी जानिब जा रहा था जहाँ साधु मुझे मिला था। वो अपनी जगह मौजूद था। मुझे देखकर इस तरह मुस्कुराया जैसे उसे मेरे आने का पक्का यकीन, और फिर उसने बड़ी चाहत से वो हड्डी अपने हाथ में ले ली। दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए, आंखें सूरज पर गाड़ दी और न जाने क्या बुड़बुड़ाता रहा। देर तक इसी अमल में मसरूफ़ रहा। इसके बाद उसने हड्डी एक पत्थर पर रख दी और मुझसे बोला, अब तो कल शाम ढले हमारे पास आना, परसों जुमा रात है ना,
हाँ, कल ज़रूर आ जाना, वरना फिर तुझे 1 हफ्ता और इंतज़ार करना पड़ेगा। किस वक्त आऊँ मैं तुम्हारे पास? कोई 6 बजे, उसने जवाब दिया और मैंने गर्दन हिला दी। वो बोला, जा भाग जा, ज़्यादा देर रुकना अच्छा नहीं होगा। मैं वहाँ से वापस चला आया। बस यूं लग रहा था जैसे मेरा काम बनने ही वाला है। यार दोस्तों से मुलाकात भी हुई, लेकिन ये कोई बताने वाली बात नहीं थी। वैसे भी मुझे उससे मना कर दिया गया था। अगर उन्हें बता देता तो वो सब भी साधु बाबा की तरफ दौड़ पड़ते, लेकिन बड़ी बेचैनी रही और बड़ा तजस्सुस था। दूसरा दिन भी न जाने किस तरह कटा। तैयार हुआ और जैसे ही 4:30 बजे घर से निकल आया, साधु बाबा का ख्याल दिल में था। वक्त गुजरता रहा और मुकर्ररा वक्त पर वहां जा पहुंचा। साधु के सामने उस वक्त न जाने क्या अला बला रखी हुई थी। एक तरफ छोटी छोटी लकड़ियां आपस में जोड़कर रखी गई थी और उनमें मध्यम मध्यम सी आग सुलग रही थी। वही चरांद, वही बदबू फिजा में फैली हुई थी जो पहले दिन मैंने महसूस की थी। एक अजीब सा तिलिस्मी माहौल था। बूढ़े साधु ने मुझे देखकर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना काम कर लिया है, अब तेरा काम बाकी है। मुझे बताओ साधु बाबा, मुझे करना क्या है? पहले वादा कर, जो मैं कहूँगा वो तू ज़रूर करेगा। ये वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूँ बाबा जी। तो फिर रुक, साधु ने कहा और अपनी जगह से उठकर अकब के पहाड़ी टीले के पीछे पहुँच गया। वहाँ से वापस आया तो उसके हाथ में न जाने किस चीज़ से बना हुआ एक बदहैयत इंसानी शक्ल का पुतला था। उसने ये पुतला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने लिबास में छुपा ले। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। बड़ी करेहत का एहसास हो रहा था। पुतला लिजा और बदबूदार सा था, लेकिन उस पर एक अजीब सी ठंडक थी। लेकिन मैंने किसी बात पर तवज्जो नहीं दी। साधु ने मुझे देखते हुए कहा, अब तू यहाँ से पीर फागन के मजार पर जाएगा। सीढ़ियाँ तय करके ऊपर जाना और कब्र के पीछे जो 3 ताक बने हुए हैं, उनमें से बीच के ताक में ये पुतला रख देना। बस यही तेरा काम है। बाद में सब हमारा काम होगा और तेरे मजे ही मजे होंगे। पीर फागन के मजार पर? मैंने सहम कर कहा। दिल के किसी गोशे में अभी कुछ ईमान बाकी था। पीर फागन से बचपन से अकीदत भी थी और सारी आवारगियों के बावजूद उनका एहतराम भी दिल में था। इसकी वजह शायद उस मज़ार से मंसूब कहानियाँ थीं। ई काम अब तुझे करना है। इस काम से मुंह मोड़ेगा तो ई दुनिया तुहार वास्ते नरक बन जाएगी। जा जल्दी कर, नहीं तो रात हो जाएगी। मैं लरजते कदमों से वापस मुड़ा। दिल की कैफियत अजीब सी हो रही थी। अगर पीर फागन के मज़ार का मामला ना होता तो मैं खुशी से उसके हर हुक्म की तामील करता, मगर न जाने क्यों एक जुर्म का एहसास हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे मैं कोई गलीज़ और नापाक शय उस मुक़द्दस जगह पर ले जा रहा हूँ। कुछ दूर जाकर मैंने गर्दन मोड़ी, मगर बूढ़ा वहाँ मौजूद नहीं था। वो नापाक पुतला मुझे अपने सीने पर बोझ सा महसूस हो रहा था। कुछ दूर चलकर एक और अजीब सा एहसास हुआ। पुतले में इंसानी जिस्म जैसी हरारत पैदा होती जा रही थी, या शायद ये मेरे खौफ का तख्लीक करदा एहसास था कि वो पुतला मुझे अपने सीने के करीब कुल बुलाता हुआ सा महसूस हो रहा था, जैसे उसमें जान पड़ गई हो। खौफ और दहशत की सर्द लहरें मेरे बदन में दौड़ने लगी, मगर मैं उसे लिबास में से निकालने की हिम्मत नहीं कर सका था। मज़ार तक का फासला न जाने मैंने किस तरह तय किया। मज़ार एक टीले पर था और वहाँ तक जाने के लिए टीले पर 19 सीढ़ियाँ तराशी गई थी। मैंने लरजते कदमों से पहली सीढ़ी पर कदम रखा। ऊपर खामोशी छाई हुई थी। चूँकि ये मज़ार शहर से बिल्कुल बाहर था और यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते थे। हाँ, जुमेरात को यहाँ रौनक होती थी और काफ़ी लोग नज़र न्याज करने आ जाते थे। आम दिनों में बस चंद मजावर या मलंग यहाँ मौजूद होते थे। मैं सहमा सिमटा हुआ सीढ़ियाँ तय करने लगा। दिमाग में एक ही जानी सी कैफियत थी और बदन में ईंधन सी महसूस हो रही थी। पाँव मुसलसल ऊपर उठ रहे थे और मैं बुलंदी पर पहुंचता जा रहा था। अचानक ही एक अनोखा सा एहसास हुआ। ये 19 सीढ़ियाँ तो अब तक तय हो जानी चाहिए थी। गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो दम बखुद रह गया। मज़ार इतना बुलंद नज़र आ रहा था कि होश उड़ गए। ये 19 सीढ़ियाँ 1900 सीढ़ियाँ बन गई थीं। खौफ के आलम में पलटकर नीचे देखा तो जान ही निकल गई। ज़मीन सैकड़ों फीट नीचे नज़र आ रही थी। बदन पर शदीद कपकपाहट तारी हो गई। सोचने समझने की कुव्वतें सल्ब होती जा रही थी। ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया?
بے شمار بار اس مزار پر میں آیا تھا، مگر یہ اتنا اونچا تو نہیں تھا۔ ہمت کر، چڑھتا جا، اوپر نظر ڈالتا جا، تو سیڑھیوں کے اوپر پہنچ جائے گا۔ میرے کانوں میں وہی منحوس باریک آواز دوبارہ ابھری اور میں اچھل پڑا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ پھر اس کا مخرج علم میں آ گیا۔ میرے سینے کے قریب لباس میں پوشیدہ پتلا بول رہا تھا۔ رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی۔ میرے حلق سے کئی دہشت بھری چیخیں بلند ہوئیں اور میں پلٹ کر نیچے بھاگا۔ میرے سینے کے قریب شدید ہلچل پیدا ہو گئی۔ پتلے کے ننھے نوکیلے ہاتھ میرے سینے میں چبھ رہے تھے۔ وہ مجھے روکنے کی جد و جہد کر رہا تھا اور اس کی چبھتی ہوئی باریک آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ او پاپی، او مورخ، کیا کر رہا ہے، کیا کرے ہے؟ ارے تیرا ستیا بنا بنایا کام بگاڑے دے رہا ہے۔ ارے سنبھل، رک۔ حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ مجھے پہلے زمین جتنی نیچے نظر آ رہی تھی، اب اتنی نیچی نہ رہی تھی۔ میں آخری سیڑھی عبور کر رہا تھا کہ پاؤں لڑکھڑائے اور میں بری طرح نیچے گرا۔ نیچے پتھریلی زمین تھی۔ سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور آنکھوں میں سورج اتر آیا۔ پھر گہری تاریکی چھا گئی۔